So, good afternoon, everyone. Firstly, greetings to the chief guest, Shri Rajan Shukla ji, for taking out time for this event, and to the guest of honor, Shri Shankar Lalwani ji, the Member of Parliament from MP, Shri Tulsi Silawat ji, Rajesh Mishra ji, and my dear PC Dubey Saab, and all the government officials, the support staff, the policemen, the press, and all the dear students. So, sir, I would just like to talk about our journey about SAMES, that how we started, how our family started this particular institute, and how we had grown up. So, this is our building with, it's a 944 feet long building with housing all the colleges. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, हॉस्पिटल सभी एक जगह पे एक ही कैंपस में एक साथ यहाँ पे उपलब्ध हैं. These are some of the aerial views. और this is the core management of our institute. My dad and my mother, my father is the founder chairman. Dr. Vinod Bhandari is a surgeon by profession. My mother, Dr. Manjushri Bhandari, she is the chairperson and the chancellor. My elder brother, Dr. Mohit Bhandari, he is a world-renowned bariatric and a robotic surgeon. His wife, Dr. Shilpa Bhandari, she is an IVF specialist. Myself, I am a laparoscopic bariatric and a robotic surgeon. And my wife, Dr. Shweta Bhandari, she is a fetal medicine and high-risk pregnancy expert. And these are the key people who are running this particular institute in our university. My dear Dr. Jyoti Bindal ma'am, she is the Vice Chancellor of this institute. Dr. Anand Mishra sir, our registrar. And Dr. Jayashri Tapadia ma'am, she is the Dean Student Welfare for SAMES. So this is our journey. My father and mother started way back in 1980 from a clinic to this huge empire which he has built up. And he started with a clinic, then he started with an hospital near our home, that Bhandari Hospital, Pardeshipura. What मेरे डैड जो आपको बता रहे थे कि मेरे डैड और मेरी मॉम अभी वहीं पे still वहीं पे practice करते हैं. And then we started with the Bhandara Hospital Research Center, super speciality unit. We were to first start the open heart operations in Madhya Pradesh. And then subsequently we started with blood bank services. We were to first to start with paramedical courses in Madhya Pradesh. And then we started with the nursing college. Then in 2003 we started with Aurobindo Hospital, which was at that time was a 300-bedded hospital. But now it has grown up into a 1,600-bedded hospital. So as you can see, we started with a medical college, a dental college, nursing, paramedical, and all the other colleges. Then in 2020, with your blessings and with the people with us, we started with Sri Aurobindo University. Then now we started with Sri Aurobindo Institute of Law recently, and then the IRCAD India Center, which my brother would be highlighting. And so what is the main thing which makes this institute different from all the other medical colleges or the medical institutes? Like, आपने सब जगहों पे देखा होगा, आपने इतने सारे कॉलेजेस, आपने इतने सारे इंस्टीट्यूट्स को विजिट करा होगा. क्या ऐसी अलग चीज़ है सेम्स में जो कि हर चीज़ हम लोग चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़ के एक आगे कदम आगे निकलें? सो एज यू कैन सी, इट्स अ डॉक्टर एंड बिजनेस. आई वुड नॉट से इट्स एज अ बिजनेस बट अ डॉक्टर एंड मैनेजमेंट टीम. एक डॉक्टर जब एक मेडिकल कॉलेज को चलाता है तो एक अलग इंटेंशन, एक अलग सोच के साथ में वो चीज़ चलती है. और इसके साथ में माई डैड, आर विजनरी लीडर, और माई मदर, उनके कारण ही आज एक विज़न है कि ये इंस्टीट्यूट एक टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन इंस्टीट्यूट है. यहाँ पे हर चीज़ कोशिश की जाती है कि बेस्ट से बेस्ट लगी जाए. सो दिस इज़ द मेन स्ट्रेंथ बिहाइंड अस, एंड मेन इज़ द लोकेशन एडवांटेज. एज यू कैन सी, वी आर लोकेटेड राइट एट द जंक्शन, जहाँ से कि राजस्थान या गुजरात या कोई भी चीज़ या एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल औरोबिंदो हॉस्पिटल है. एंड देन वी हैव गॉट अ मेन, ये जितनी भी चीज़ें जो हो पाती हैं सब कुछ हो पाती हैं एक टीम के द्वारा. कोई एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है, हम लोग अकेले कुछ भी नहीं कर सकते. ये पूरी एक टीम है जो कि इस चीज़ को सब कुछ रन करती है. एंड एक सोच होती है जो कि इस चीज़ के लिए आगे काम में आती है. सो दिस मेक्स सेम्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर इंस्टीट्यूट्स. आई वुड जस्ट टेक सम टाइम, आई नो थोड़ा शेड्यूल आगे पीछे हुआ है, बट आई वुड जस्ट पार्डन मी, बिकॉज मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या इस पूरी संस्था ने एक इस जगह पे करा है जिसके कारण से कुछ एक अलग नज़रिया बदला है. So talking about the SAMES hospital, this hospital is a 1,600-bedded multi-speciality hospital with having ICUs in all the respective subjects. And it is the NABH and NABL fully accredited hospital in all these streams.
with having government tie-ups of each and every government scheme which is available. Maybe the Ayushman or the central government or the Rajasthan government or the Madhya Pradesh government scheme, ESIC, CISF and other schemes. So talking about the Aurobindo Hospital, as it's a multi-speciality hospital with more than 20 operating rooms specializing in cochlear implants and dedicated cancer hospitals doing bone marrow transplants. So this is the most advanced hospital which I could say. And just to tell you that we were a dedicated COVID-19 hospital at that time, and we had treated more than 40,000 plus patients at that particular time. And in central India, all the super specialities are under one roof. It is available in Aurobindo. We have got CT scans, MRIs. There are 4 CT scans, 2 MRIs. Then we have got gamma camera, gamma knife, radiotherapy, variant machines, DRCR X-ray systems, then state-of-the-art pathology lab and a simulation lab and other molecular lab and mammography and everything under one roof. Then इसके साथ में in the नॉर्मल सुपर स्पेशलिटीज़ भी जनरल स्पेशलिटी के साथ में रन होती है, जैसे कि एनेस्थीसिया में वी आर टेकिंग केयर ऑफ द पेन मैनेजमेंट. लाइक जिन लोगों को कैंसर में बहुत ज़्यादा पेन होता है उन लोगों के लिए एक स्पेशलाइज्ड पेन क्लिनिक्स भी इस अस्पताल में होते हैं. देन इन मेडिसिन वी हैव गॉट रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्लिनिक्स. पीडियाट्रिक्स में देर आर मैनी सुपर स्पेशलिटीज़ like the endocrinology, neonatology, genetic disorders, cardiology, nephrology, which all are working here in this institute. And then in surgery, because our family, as you can see, all the 3 male people are surgeons only, so we are very much into surgery. Like we are doing the highest volume of bariatric and robotic surgeries in Madhya Pradesh, and we are doing pediatric surgery, cardiothoracic surgery, plastic surgeries. Then in orthopedics, we have got a robot also. We are doing hand surgeries also. So these are some of the specialities which we are doing in our hospital. And then talking about the numbers, as I just said that we were the first to start the open heart unit in this state, and we have done close to more than 15,000 plus open heart surgeries. Then not to mention we are the highest volume cochlear implant center, and this is the only institute to have the cochlear BSLP program, which is the speech and audiology college. इस particular institute में cochlear implant के अलावा एक speech and audiology का college भी है. कॉकलियर इम्प्लांट करना तो एक नंबर होता है, पर एक बार पेशेंट का कॉकलियर इम्प्लांट हो जाए एक बच्चे का, उसके बाद में उसकी फिजियोथेरेपी जो लगती है, तो हमारे यहाँ पे इस चीज़ का कॉलेज भी है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें बच्चे का पूरी ट्रेनिंग बहुत प्रॉपरली हो पाती है. देन क्योंकि एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल है, तो वी हैव डन मोर देन 12,000 सर्जरीज विद ट्रीटिंग मोर देन 40,000 प्लस पेशेंट्स. देन वी आर डूइंग IVF एंड अदर बेरियाट्रिक सर्जरीज. एज आई टोल्ड यू, इट्स द हाईएस्ट वॉल्यूम बेरियाट्रिक सर्जरी नंबर इन द कंट्री. सो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी क्या अलग स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उनको भी ये चीज़ देखना रहेगी कि एक मेडिकल कॉलेज गवर्न इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि कहीं और पे उपलब्ध नहीं है मध्य प्रदेश में. तो मैं अपना एक वीडियो छोटा सा प्रेजेंट करूंगा. मैं डॉक्टर महक भंडारी हूँ, मैं इंदौर से हूँ. मैं पेशे से एक जनरल लेप्रोस्कोपिक एवं एंडोस्कोपिक प्लस बेरियाट्रिक मतलब मोटापे की सर्जरी एवं एक रोबोटिक सर्जन हूँ जो कि रोबोट के द्वारा सर्जरी कर सकते हैं. आज मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों से अलग क्यों हैं, क्या हमारे अंदर अलग चीज़ है जो कि ओटी के सेटअप से दिखाया जाएगा, जो कि हमको कुछ लोगों से अलग बनाता है, जिसका फ़ायदा पेशेंट्स को ही मिलता है और पेशेंट इस चीज़ को देखते हैं. तो मैं आपको आज एक विश्व स्तरीय ओटी का आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस ओटी में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण से हम सर्जरी को बहुत प्रिसाइज, बहुत ही अच्छी बना पाते हैं. और यही हमारी USP है कि हम सबसे अलग कहलाए जाते हैं. तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. जो सबसे बेसिक चीज़ है ओटी की टेबल. ये एक प्रकार की स्पेशल टेबल है जो कि हर प्रकार के वजन को भी सह सकती है, भले ही वो 200-250 किलो का भी पेशेंट हो या नॉर्मल पेशेंट भी हो. इसमें पैर भी फैल सकते हैं, नॉर्मल हर प्रकार की चीज़ इस टेबल पे की जा सकती है. प्लस सेकेंडली मैं यहाँ की विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी से आपको अवगत कराना चाहता हूँ. आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, ये सब इसी ओटी में रहते हैं. स्टार्ट में करना चाहूँगा क्योंकि मैं एक पेशे से एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ. तो ये एक लेप्रोस्कोपी की ट्रॉली है जिसमें हमारे पास में कार्ल स्टोर्स का सेटअप है. कार्ल स्टोर्स एक बहुत ही मानी हुई कंपनी है जिसमें हर प्रकार की चीज़ उपलब्ध रहती है, प्लस हर प्रकार की एनर्जी डिवाइस भी हमारे पास उपलब्ध है, जैसा कि हार्मोनिक, वेसल सीलर, जिससे कि बहुत ही अच्छे से ब्लीडिंग या कोई भी चीज़ हो या डिसेक्शन हो तो वो कंट्रोल किया जा सकता है. सेकेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में एवं इंदौर में एकमात्र सेंटर जहाँ पे कि रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध हो, जो कि डाविंची का एक इन हाउस सिस्टम हमारे पास में जिसका नाम है डाविंची एक्स सिस्टम. ये डाविंची का कंसोल है जहाँ पे कि मैं बैठ के ऑपरेशन करता हूँ. और ये डाविंची के हाथ हैं, ये आर्म्स हैं, जहाँ पे कि
ये वाले आर्म्स पेशेंट के अंदर जाते हैं और यही आर्म्स ऑपरेशन में हेल्प करते हैं. So I'm just running through the videos because of the lack of time, and so this was the most advanced operating room in our hospital. So this is a medical college having the robotic systems in-house. We have got 2 robotic systems with us, and because we both are robotic surgeons, so we are the only one who are doing robotic surgeries. And then this is the central lab with us. डॉक्टर अमित बात करता हूँ. And then we have got the training lab with us, because अगर students यहाँ पे train होते हैं और अगर आप उनको patients के बजाय अगर आप उनको simulation से training दिखाते हैं, जैसे मैं just थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा इसको. हमने आपको दिखाता हूँ. जैसे कि आज आप जानते हैं कि जैसे कि सोनोग्राफी की अगर मोडालिटी की बात करें तो आज सोनोग्राफी की ट्रेनिंग डायरेक्ट पेशेंट्स पे करने के बजाय अगर एक ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध है तो ये अरविंदो में उपलब्ध है. तो एज यू कैन सी दैट सोनोसिम करके एक कंपनी के साथ में टाई अप करके, so we have developed a modality with SonoSim company, and then this is the most special thing which we are having. My father, Dr. Vinod Bhandari, would be speaking on this. This is known as an Ummido wali bus, in which he has created 3 bus. ये उनके दिल के बहुत करीब सी एक चीज़ है ये, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा. काफ़ी वो इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि उनके मन में अब एक इच्छा थी कि अब बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव करी है, लेकिन अब मुझे एक चीज़ मुझे अपनी सोसाइटी को भी देना है, जिससे कि मैं एक ऐसी चीज़ कर पाऊँ जिसके कारण से लोग के अंदर एक जो डर रहता है किसी भी चीज़ को करने का वो ख़त्म हो. जैसे कि मैं आज मध्य प्रदेश में ही बात करें, इतने सारे गांव और ये सब हैं यहाँ पे मौजूद. वहाँ पे अगर हम बात करें कि महिलाओं के बारे में, जैसे कैंसर की जो चीज़ है, जैसे कि स्तन में गठान, यहाँ पे जितनी भी गाँव की महिलाएँ हैं वो सब एक तो शहर आने में डरती हैं, प्लस अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाती हैं. तो डॉक्टर विनोद भंडारी की एक पहल के द्वारा एक ये बस क्रिएट की गई है जिसमें कि मेमोग्राफी की मशीन इनबिल्ट है. तो एक इस ग्रुप के द्वारा एक प्लेज लिया गया है कि ये पर्टिकुलर बस आपके स्थान पे ही आ सकती है और ये पर्टिकुलर बस ही वहाँ जाके उनका डायग्नोसिस, उनकी स्क्रीनिंग, उनका ट्रीटमेंट वहीं के वहीं कर सकती है. और उन पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, उनका इलाज करते हैं ताकि जल्द से जल्द कैंसर मुक्त बना सकें. तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम चालू करी है डॉक्टर विनोद भंडारी के द्वारा और इस संस्था के द्वारा. और इसमें मुझे बता के एक अलग प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है, मुझे बताना चाहता हूँ मैं, कि इसका एक हमने नाम दिया द पिंक टीम. पिंक टीम मतलब इसमें सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ हो गए या बाइयाँ हो गई या जो भी लोग रहते हैं, इसमें सब लोग पर्टिकुलरली फीमेल होते हैं. महिला के सामने थोड़ी कंफर्टेबल ज़्यादा रहती है. तो ये हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जिसका नाम है निवारण. तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करी है. सेकेंडली, मेरे ब्रदर के द्वारा एक उनका सपना कि ट्रेनिंग आज इंडिया में, ट्रेनिंग के नाम पे इंडिया में इतने अच्छे सेंटर्स उपलब्ध नहीं हैं, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कोई ट्रेनिंग सेंटर के साथ टाई अप करना जिसका नाम है इरकार्ड. उन्होंने उसके साथ में अरविंदो का टाई अप किया है. और आज आप ये देख सकते हैं कि ये फ़ोटो मेरा फ्रांस का स्ट्रासबर्ग का है, जहाँ पे इंदौर का नाम यहाँ पे है, और जो कि इसी कारण से पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ की जितनी जो टीम है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, उन सब लोगों का जज्बा, उन सब लोगों की मेहनत, इस पूरी टीम की मेहनत के कारण ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है. सेकेंडली, आप ये देख सकते हैं ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा सहयोग करता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ डेटा 1 जनवरी से लेकर अभी तक का निकाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने सारे कैंप्स हम लोगों ने करे हैं, जिसमें आप ये देखिए कि कितने तादाद में पेशेंट्स देखे गए हैं. 200 लोगों को यहाँ से लोग ट्रेन होते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों का परीक्षण करते हैं पेशेंट्स का. तो हम लोग सिर्फ अरविंदो में ही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम लोग बाहर जाके भी हमारे स्टाफ को, हमारे डॉक्टर्स को बाहर भेजते हैं और हम लोग उनसे उधर के स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट कराते हैं और यहाँ पे उन पेशेंट्स को लाके उनको इलाज उपलब्ध कराते हैं. ये आप कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं. हर प्रकार के बड़े कैंप जितने भी मध्य प्रदेश शासन के हों या कोई से भी, उसमें अरविंदो सबसे तत्पर रहता है. ये कुछ पिक्चर्स हैं उस चीज़ों के. देन हमने एक नई चीज़ भी और स्टार्ट करी जिसका नाम है फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम. फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम का मतलब ये होता है, फर्स्ट ईयर का बच्चा हम लोग एक गांव की फैमिली उसको अलॉट कर देते हैं. उसमें जितने भी लोग हों, भले ही उसमें फादर मदर, उनके 3 बच्चे या 2 बच्चे या उनके माँ बाप कोई भी हों, वो पूरे के पूरे 5 या 6 लोग एक पर्टिकुलर कार्ड के द्वारा निःशुल्क 3 साल के लिए यहाँ पे इलाज मुफ्त में करा सकते हैं. ये बच्चा फर्स्ट ईयर से लेके जब तक वो पूरी फैमिली उसको वो साथ में रहता है और वो पूरी फैमिली उस बच्चे के साथ में पूरा अपना इलाज का एक बीच में कोऑर्डिनेशन करती, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो बच्चा रहता है. तो ये हम लोगों ने एक नई मुहिम भी और स्टार्ट करी है कि MBBS करिकुलम में
फर्स्ट ईयर से एक फैमिली को आप अडॉप्ट करें, ठीक। और ये कुछ पिक्चर्स हैं उस चीज़ के। देन टॉकिंग अबाउट द मेडिकल कॉलेज, इट्स अ 250 सीटेड कॉलेज विथ PG सीट्स इन ऑल एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। हम लोगों ने पहली बार मध्य प्रदेश में DM कोर्सेज की स्थापना करी थी। देन डेंटिस्ट्री कॉलेज में अगेन इट्स अ 100 सीटेड रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज विच PG इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। वी आर डूइंग PhDs ऑल्सो। देन नर्सिंग कॉलेज में भी हर प्रकार की GNM, ANM, BSc हर प्रकार की डिग्री यहाँ पे यूनिवर्सिटी से उपलब्ध है। देन फिजियोथेरेपी में भी MPT, BPT, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, देन टेक्नीशियंस को डेवलपमेंट करना, ये सब भी यहाँ पे उपलब्ध है। देन वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जिसमें BA, LLB, LLM, PhD सब ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल विद अस। Then the other institute, as I told you, the speech and hearing, BSLP, audiology, then journalism and mass communication degree of BA, BSc is also available with this institute. तो मैं बस लास्ट के 2 मिनट लेना चाहूँगा कि क्योंकि औरबिंदो ने कोविड महामारी के समय इतने अच्छे से करीबन 40,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया था, तो उसका एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने बनाया है, मैं जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। So thank you everyone.